Okay, Assalamu alaikum all. This is our 13th session of this course. So आज हम अपने वेक्टर कैलकुलस का जो रिव्यू कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे विल ट्राई कि आज उसको फिनिश कर लें हम. लेट्स सी हाउ इट गोज एंड रिमेंबर द गोल ऑफ दिस वेक्टर कैलकुलस रिव्यू इज एक तो ये कि you do really understand the mathematical meaning of these equations exactly in depth, जो आपको पता हो mathematics का मतलब क्या है. Plus you should know the engineering and scientific interpretation of these operators. What do we mean by that? So last time we covered few of these things, elementary things. So let's move on, and today we'll start with gradient. Okay, gradient. Why we are studying this gradient? You may recall that from your earlier course that we have an electric field, electrostatics, and that is equal to the gradient of the voltage, which is a scalar function. So we need to understand what do we mean by this gradient. That's basically kind of a hidden part of Maxwell's equations. So let's look over it. So in order to understand this gradient, let me build an example for you. So let's say that that you let's say, you know, it's an intense winter and you are sitting around you know, bonfire, you know, एक बीच में दरमियान में एक flame चल रहा है, and you, if there is a flame in between, in the center, you know, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि टेम्परेचर का स्केलर फील्ड इसके अराउंड प्लॉट करें तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं. वो क्या होगा, लेट्स से एक सर्कल में यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा. लेट्स से एज एन एग्जांपल बिल्ड करते हैं, लेट्स से 40 है यहाँ पर. सो एज यू मूव फर्दर, यू नो, this temperature starts decreasing. Let's say ये 35 है, और 35 और 40 का मतलब ये कि इस पूरे सर्कल के ऊपर 40 है, इस पूरे सर्कल के ऊपर 35 है, and you understand that thing clearly. और फिर let's say you go further away, let's say it becomes 30 and you know, and थोड़ा सा बीच में you know और further away चले जाते हैं, you know, ये दूर है. अच्छा थोड़ा सा इसको बल्कि इसको इस तरह करते हैं, 40 की जगह, you know, let's say 20 and 15 or something like that, 10. ठीक है, this is the temperature profile as an example. अब let's say that अब यहाँ पर कहीं खड़े हो, ठीक है, you are standing here and you know you अब बहुत ज़्यादा सर्दी से ठिठर रहे हो, बहुत ज़्यादा सर्दी से ठिठर रहे हो, and you want to move towards a heated zone as quickly as possible. तो क्या करोगे आप लोग? क्या आप ये करोगे कि यूं सर्कल अराउंड करो and you know, और फिर कहीं जाके फ्लेम के पास जाओ? What would be a strategy? Obviously what you're gonna do is that you're gonna walk straight like this towards the flame to reach to the heated zone as quickly as possible. और आप ये रियल लाइफ में कर रहे हो ऐसा, और basically what you are doing, you in your real life you're trying to take the gradient of the temperature field in order to reach to the heated zone. अब आप देख सकते हो when you are moving from this point to this flame, temperature सबसे ज्यादा तेजी से बदल रहा है. अगर आप यूं करो, like लिख दिस जाओ या कोई और पाथ रो, the temperature variation would not be as faster as this guy. So that brings us to the definition of gradient, which says actually gradient vector determines both
the direction and magnitude of the maximum space rate of change of a scalar field. ठीक है, अगर ये एक फॉर्मल डेफिनेशन है मैथमेटिकली, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है दैट इज partial f over partial x ax, partial f over partial y ay, and partial f over partial z az. यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं उसको दोबारा एम्फसाइज कर देता हूं, that you are taking the gradient of a scalar field, ठीक है, of a scalar field, and the outcome would be a vector, ठीक है, और वो वेक्टर क्या होगा, उसका जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा वो होगा मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फील्ड, यानी कि ये स्पेशियल ऑपरेटर है, दिस इज अ स्पेशियल ऑपरेटर, स्पेस के ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है। उसी तरह हम ऊपर देखें, F is a temperature field and you can see कि वो किस तरह चेंज होगा by mathematically formally doing like this, ठीक है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, अब इसकी एज आई सेड मेरी कोशिश होगी हर ऑपरेटर की मैं कोई इंजीनियरिंग एप्लीकेशन दूं। लेट्स से इसका एक एनालॉजी इस तरह हो सकती है, बीइंग एन इंजीनियर और बीइंग ए साइंटिस्ट, लेट्स से दैट यू वांट टू have a vacuum cleaner. You know what a vacuum cleaner is, right? मोटर वाला झाड़ू जिसे कहते हैं, you know, खुद ही जो चलता है, vacuum cleaner. So vacuum cleaner, let's say you want to automate your vacuum cleaner. So what you can do that, let's say you have cameras which can image dust, and वो dust का profile बना देगा एक room के अंदर, वो प्रोफाइल स्केलर फील्ड होगा, आपका जो वैक्यूम क्लीनर है वो ग्रेडियंट लेगा उस डस्ट प्रोफाइल का एंड स्टार्ट स्टार्ट क्लीनिंग क्विकली, जहां सबसे ज्यादा गंद है वहां से वो स्टार्ट करेंगे एंड सो फोर्थ। सो ग्रेडियंट बड़ी एक हैंडी कॉन्सेप्ट है, and that's and this is its interpretation, उसकी कोई इंजीनियरिंग इस तरह है। एक क्विक एग्जांपल करके देख लेते हैं, लेट्स से यू नो मैथमेटिकल एग्जांपल है, लेकिन it's good to know that. Let's say आपका एक फील्ड है, वो डिफाइंड है x plus y के साथ, ठीक है। This is the field which is defined in this Cartesian coordinates. इसका ग्रेडियंट क्या होगा, बड़े सिंपल तरीके से ट्रिवियल सा है, that you take the spatial derivative with respect to x, तो वो ax हो जाएगा, और वो y के साथ करेंगे तो ay आ जाएगा। ये इसका ग्रेडियंट है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, you can see this thing, magnitude of gradient is what, स्क्वायर रूट 2, और ये यूनिट वेक्टर है, ये उसकी डायरेक्शन है। अगर इसको थोड़ा सा हम इंटरप्रेट करें, अगर मैं इस फील्ड को ड्रॉ करूं, सो x प्लस वाई, लेट्स से ये मेरा x है एंड ये मेरा y है, सो ये जो फील्ड है आप क्या करोगे, यू नो, लेट्स से दिस वन इज 1 एंड दिस वन इज 1, सो ये x, ये वाली लाइन जो है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 की है, इस पूरी लाइन के ऊपर वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। that's how you draw a scalar field. Similarly ये जो होगा, let's say ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की लाइन है, एंड लेट्स से ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की लाइन है। अब ग्रेडियंट क्या है, यू कैन सी दिस थिंग, इसकी डायरेक्शन क्या है, ax प्लस y, ग्रेडियंट इज दिस गाय, दिस इज द ग्रेडियंट, ये उसकी डायरेक्शन है ग्रेडियंट की किसी भी पॉइंट के ऊपर, और ये उसका मैग्नीट्यूड है। एक्चुअली हर पॉइंट इस पूरे, इसकी खास बात ये है इस ग्रेडियंट की, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये कांस्टेंट है, ये थ्रू आउट द फील्ड ये इसी डायरेक्शन के अंदर है, थ्रू आउट द फील्ड इसी डायरेक्शन, इसके अंदर कोई x और y नहीं है कि x और y के साथ बदल रहा हो, दिस ग्रेडियंट इज ए कांस्टेंट ग्रेडियंट थ्रू आउट दिस फील्ड। सो दैट्स ए क्विक एग्जांपल। अगर मैं आपको इसकी क्विक एक एनिमेशन दिखा देता हूं और फिर हम आगे मूव करते हैं,
unless you have any question. So आप ये देखें, ये मैंने फील्ड एक स्केलर फील्ड ड्रा हुआ, यही x प्लस वाई का, ये मैं जहां जहां मूव होता हूँ, ये अब ये नजर आ रहा है ग्रेडियंट कांस्टेंट है, इसका वेक्टर का एरो और इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है। अब लेट्स से कोई और फंक्शन है, ठीक है, ये वाला, अब आप देख सकते हो ये ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं है, जहां जहां मैं मूव कर रहा हूँ, यू नो, इसका जो मैग्नीट्यूड है ऑब्वियसली इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम, ये कॉन्टूर्स हैं चेंज को शो कर रहे हैं और डायरेक्शन भी उसी में होगी यहाँ, यू नो, एज आई मूविंग इट्स डायरेक्शन और इट्स एरो फॉर। जी बोलो, क्वेश्चन, एनीबॉडी इज अ क्वेश्चन? नो। सो लेट्स से अगर मैं दरमियान में हूं, यहां पर कुछ भी बदल नहीं रहा, so it's pretty much zero, there is no change here, लेकिन as I move there then there is a change, so that's gradient. I will post this animation and you play with this, और chapter 2 जो है उसको आप देखिएगा गौर से। So this is on gradient. इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात जो है gradient की, एक बड़ी अच्छी utility है, वो ये है कि अगर आप एक स्केलर फील्ड को ऊपर चेंज लेट्स से आप मेजर करना चाह रहे हो कि उसमें डिफरेंशियल चेंज कितनी है, so what you gonna do, you take the gradient of that scalar field and you project along the path you are trying to figure out this thing. अब अगर वो जो मैंने शुरू की एग्जांपल दी थी जहां पे कॉन्टूर्स हैं, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर dt फाइंड करूंगा तो ये तो कॉन्टूर सेम टेम्परेचर का है, तो यहाँ पे dt तो जीरो है, इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरा dl है तो डेल्टा ये जो डेल ऑपरेटर है टेम्परेचर का, ये and this are perpendicular, so gradient is perpendicular to it, और ये बड़ी खूबसूरत इंट्यूशन है, you can see in these contours your gradient is always perpendicular to these things. So that's on a gradient. Let's move on unless you have any question. Okay, so let's सर जी बोलें। आपने जहाँ पे आपने x प्लस वाई की फील्ड ड्रा किया तब आपने डायरेक्शन कैसे लिया ग्रेडियंट की? ये वाला जी, ये देखो ना, ये मैंने ये मेरे कार्टेशियन एक्सिस हैं x और y के, ठीक है, और ये ग्रेडियंट निकला है यूनिट वेक्टर ax प्लस ay, राइट? जब ये ax प्लस ay है, इसका मतलब यही है ना कि 1ax प्लस 1ay, तो इसको जब आप प्लॉट करोगे तो वो ये इसी तरह ही आएगा 45 डिग्री के ऊपर, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, अब आगे चलते हैं, अब अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं लाइन इंटीग्रल का। लाइन इंटीग्रल का अगेन आपने सब ये देखे हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इंजीनियरिंग इसका पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। लाइन इंटीग्रल कहां पर है? मैक्सवेल्स इक्वेशन के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये लाइन इंटीग्रल है, ये दिस वन इज लाइन इंटीग्रल, दिस वन इज लाइन इंटीग्रल, दिस वन इज लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल्स हैं। सो लेट्स इनके इंटरप्रिटेशन देखते हैं, इनका मतलब क्या है लाइन इंटीग्रल का क्विकली। सो व्हाट डू वी मीन बाय लाइन इंटीग्रल? जो डेफिनेशन है लाइन इंटीग्रल की वो ये है कि कोई भी वेक्टर फील्ड है, लेट्स से एफ, एनी वेक्टर फील्ड, मैं जनरल बात कर रहा हूं, मैथमेटिकल बात कर रहा हूं, इट कुड बी एनीथिंग, उसका आप लेट्स से प्रोजेक्शन करो अलोंग ए पाथ एंड यू टेक द इंटीग्रल अलोंग दैट पाथ। एज एन एग्जांपल, इसको मैं मोटिवेट करता हूं यहां से, ये मैं एनिमेशन बड़ी खूबसूरत विकीपीडिया से मुझे नजर आई थी एंड आई एम गोना शेयर इट विद यू। आपको पता है इस चीज का, इट्स जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू। किधर गया? सो लुक ओवर दिस, ये एक वेक्टर फील्ड है, ठीक है, ये उसमें कॉन्टूर है एंड यू कैन सी किस तरह वो एक dl या r डैश का यहाँ पे नाम दे दिया है, और वो f का प्रोजेक्शन अलोंग द dl एज यू आर मूविंग, डॉट प्रोडक्ट यानी प्रोजेक्शन आप देखोगे और पूरे पाथ के अराउंड वो प्रोजेक्शन को मेजर करते जाओगे, और इन द एंड लाइन इंटीग्रल क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व ऑफ दिस पाथ, ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरत चीज है और बहुत पावरफुल चीज है, एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है ये, यानी कि बेसिकली आप क्या करें, अलोंग द एक वेक्टर फील्ड है और अब अलोंग पाथ उसका प्रोजेक्शन देखो और लिखो कितना उसका कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब इसकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन क्या हो सकती है इस लाइन इंटीग्रल की? लेट्स से कि आपका एक एंटेना है, एक तार का एंटेना है,
राइट, एक लंबी सी तार है, पतली सी है, लेट्स से हम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इसको 1D में एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, और आपके यहाँ पर तमाम हर तरफ यूफोन के सिग्नल फिर रहे हैं, ठीक है, एंड आई वांट टू नो कि कितना सिग्नल मैं कैप्चर कर रहा हूँ. सो व्हाट यू कैन डू फॉर ऑल दीज वेक्टर फील्ड्स, you will find the projection over this tar and you add them, and that would be the strength of the signal you're getting on an antenna. इस किस्म की चीजें बहुत हैंडी होती हैं जब सिमुलेशंस आप करने की कोशिश कर रहे हो. आप एक लाइन, आपका कोई भी स्ट्रक्चर है और आप इंटरेस्टेड हो अलोंग ए लाइन फील्ड कैसा है, तो आप क्या करते हो, जैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड या किस किस्म की फील्ड हो, आप उसका प्रोजेक्शन देखते हो और उसकी मेयर, आप उस सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को मेयर कर लेते हो. सो दैट्स ए लाइन इंटीग्रल. और अगर मैं इसके ऊपर ये लगा दूं सर्कल, इसका क्या मतलब है कि मैंने अपने लाइन इंटीग्रल को क्लोज कर दिया है, यानी कि जो भी पाथ है ना वो ए और बी कोइंसाइड कर रहे हैं, ये इसका मतलब है, ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पर हैंडी चीज जो ये है वो ये है कि यू आर लुकिंग ओवर द प्रोजेक्शन ऑफ some vector over the path and you're adding the contributions, ठीक है. ये उसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज है. अगर मैं इसको ये देखूं, इसको अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा देखूं, फॉरगेट अबाउट हम फिजिक्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, दिस इक्वेशन, सो आई कैन से दिस थिंग, लेकिन इस इक्वेशन को देखते हैं पहले. इस इक्वेशन को देखो, मैं ये कहूंगा कि जो इलेक्ट्रिक, नॉट इलेक्ट्रिक वर्ड नहीं, जो ई वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन अलोंग डीएल हम मेजर कर रहे हैं और उसको ऐड कर रहे हैं, और ये वाला जो ये पूरा कॉन्टूर जो है ना क्लोज्ड कॉन्टूर में देख रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि ये जब हम ये काम मैथमेटिकली कर लेते हैं तो ये बेसिकली टाइम डेरिवेटिव के बराबर है, समथिंग ऑन दोस लाइंस, यू नो. डोंट वरी, अभी हम इसको मजीद इसको समझेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर हम इसको इन वर्ड्स एक्सप्लेन कर सकें. या लेट मी रीइटरेट दिस, मैक्सवेल्स इक्वेशंस को अगर आपने अच्छे तरीके से समझना है ना, तो आप अपने दिमाग में जब आपके सामने इक्वेशन सामने लिखी हो ना, आप इसको इंग्लिश के अंदर इस इक्वेशन को प्रोनाउंस करें. फॉर एग्जांपल, here we would say that not electric field, E vector is projected along the DL and we are looking over its contribution in a contour. तो आपको बड़ा खूबसूरत मैथमेटिक्स समझ आ जाएगी और इंट्यूशन भी फिजिक्स की किक इन कर जाएगी when we will discuss more in detail. So that's the line integral. ठीक हो गया. अच्छा, अब अगली बात करते हैं. तो इसमें ये बात नहीं भूलनी है आपने, जब भी कभी क्लोज्ड होगा तो ये कॉन्टूर आपने ऊपर लगाना है, ठीक है. अगर क्लोज नहीं है तो नहीं लगाना. मैक्सवेल्स इक्वेशन के अंदर ये हर जगह पर क्लोज है, ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है, ठीक है. आगे चलते हैं. सो नेक्स्ट थिंग इज फ्लक्स, ठीक है. फ्लक्स का वर्ड you have been exposed, you know, आप बहुत अरसे से फ्लक्स के वर्ड के साथ एक्सपोज हुए हो. सो लेट्स रिव्यू दैट वेरी क्विकली. इसको मोटिवेट करने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जो आपने बहुत दफा देखी हुई है. सो अगर मैं इसको देखूं, एक सेकेंड, ये मैग्नेट सबने बहुत दफा देखा हुआ है ना, सबने बहुत दफा देखा हुआ है. ये मैग्नेट क्या होता है, इसके अंदर यू हैव ऑल दीज, ये मेरा कर्सर विजिबल है आप लोगों को? कैन एनीबॉडी से यस और नो? इज माय कर्सर विजिबल? ओके, सो you know this thing. एक मैग्नेट के अंदर ये नॉर्थ साउथ पोल होते हैं और आप ये बचपन से ये इस किस्म की लाइनें ड्रॉ कर रहे हो. ये लाइनें जो हैं ये फिजिकल चीज नहीं है, यानी कि ये फिजिकली लाइंस नहीं बनी हुई. व्हाट इज दिस लाइन रिप्रेजेंट्स कि अगर आप इधर खड़े हो तो आप पे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इस तरह लगेगी, just in the form of lines, you know. यहाँ पर आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, यहाँ पर थोड़ी ऊपर होगी, tangent to that, so something on those lines. That's the point यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ कि ये फिजिकल चीजें नहीं, लेकिन ये एग्जिस्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ फोर्स. यहाँ वो आप लोगों ने इसको बिल्कुल वैसे भी देखा हुआ है
कि शायद आपने बचपन में किया हो, आयरन फ्लैंक्स लेके and you distribute it along the magnet and you see all these lines of force which are being made around it. अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ओके, यहाँ पर शायद मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, so let me go back. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वही जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी, you know, something like this, कि मैं एक ये दरवाज़ा बनाता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ इस दरवाजे से कितनी लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस पास हो रही हैं या कितनी इमेजिनरी लाइंस अंदर आ रही हैं. सो दैट ब्रिंग्स यू द नोशन ऑफ फ्लक्स. सो यू बेसिकली से नेट आउटफ्लो. ठीक है, नेट आउटफ्लो इज काइंड ऑफ फ्लक्स. और ये जो है, आपने कभी ये नहीं समझना कि हम always will talk about magnetic lines of force, electric lines of force. It's a generic mathematical concept. Any imaginary this kind of a vector field, अगर वो exist करता है और आप उसके ऊपर एक area बनाओ, उस area से जो चीज निकल रही है, that's the flux. A flux की mathematical definition would become this guy. Psi is equal to F dot ds. ठीक है, और ये मैंने इसके ऊपर कॉन्टूर नहीं लगाया. ये s के ऊपर अगर ये कॉन्टूर होगा, इसका मतलब एरिया इज क्लोज्ड, यू नो, लाइक जैसे सफेयर है, तो क्लोज नहीं है तो इट्स, अगर नहीं है तो सम लाइक ऐसे लाइक दरवाजा या ओपनिंग है वी आर टॉकिंग अबाउट. सो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? फ्लक्स इज द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर फील्ड f on an area which is integrated throughout the area. किसी भी एक खास पैच के ऊपर आप अगर उसको देख लो and you integrate throughout the area, that would be the net flux. That would be the net flux through that area. और मैं इसके ऊपर अगर contour लगा दूंगा, that becomes closed. So अगर मैं आपको एक quick animation दिखाता हूँ इसके ऊपर, yeah, here it is. So okay, ये नजर आ रही है ना आप लोगों को? So that's the flux. You guys can see that, right? This movie. Yes. No sir. नहीं नजर आ रही? नहीं सर. अच्छा, गड़बड़ हो गई है. क्या नजर आ रहा है आपको? बस फाइल्स नजर आ रही हैं. क्या नजर आ रही है? वीडियो फाइल्स नजर आ रही हैं. बस आपने वो एक्सप्लोरर खोला हुआ. अब इसको कैसे शेयर करें? That's sad. अच्छा, आपको ये नजर आ रहा है और अच्छा ठहरो, मैं दोबारा शेयर करता हूँ. मेरा ख्याल है आई थिंक शायद मैं वीडियो को डायरेक्ट शेयर करता हूँ, फिर शायद हो जाएगी, है ना? लेट मी डू दैट. शेयर स्क्रीन एंड ये अब हो रही है? जी सर. ओके, जबरदस्त. सो दिस इज द फ्लक्स. You can see lines हैं इस एरिया से जो नेट आउटफ्लो हो रहा है, that's a flux. ठीक है, आपको you know this thing. अब अगर मैं थोड़ा सा, क्योंकि वो प्रोजेक्शन है इसके ऊपर, so I can अगर मैं थोड़ा सा एरिया को टेढ़ा मेढ़ा कर दूं तो फिर क्या होगा? Let's see that. And you may have already guessed कि क्या होगा. जो इंपॉर्टेंट बात है इस सारे एपिसोड के अंदर, ये मूवी नजर आ रही है ना? अब ये आप देखो, यहाँ टेढ़े एरिया को टेढ़ा मेढ़ा कर दो, यहाँ लाइंस जो लाइंस है वेक्टर फील्ड की वो टेढ़ी हो जाए, तो फ्लक्स क्या होगा? यहाँ पर वो कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा जो कि अलोंग द एरिया नॉर्मल होगा. उसका क्या? ओके, मे बी ये कंफ्यूजिंग बात मैंने कर दिया आप लोगों को, शायद कुछ लोगों को भूल गया हो, तो मैं आपको एक बात जल्दी से रिमाइंड करवा दूं, फिर मैं दोबारा इस एनिमेशन को दिखाता हूं. किधर गया मेरा? जब हम एरिया की बात करते हैं ना, ये जैसे एरिया है, इसका जो एरिया जो है ना, पैच एरिया, इसका एक नॉर्मल होता है. एंड एरिया दिस ds बाय डेफिनेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, सो व्हाट आई मीन हियर, लुक एट माय वीडियो. से अगर ये एक एरिया है, तो ये जो पेन मैंने नॉर्मल ड्रॉ मेरे सामने है, ये इस एरिया का, दैट इज द नॉर्मल टू द एरिया.
सो जो जितना भी लाइंस ऑफ फोर्स होंगी जो इस नॉर्मल के अलोंग होगी ना, वो कंट्रीब्यूट करेंगी टुवर्ड्स द फ्लक्स, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग शोन हियर, दैट दिस एरिया, इसका जो नॉर्मल है ds का वो परपेंडिकुलर होगा इस एरिया के, और ये जो वेक्टर फील्ड है इसका जो कंपोनेंट उस नॉर्मल के अराउंड होगा, दैट वुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फ्लक्स. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बड़ा, एंड आई थिंक आप लोगों को शायद इसका ऑलरेडी पता है, सो इट्स जस्ट अ रीइटरेशन. ठीक हो गया? अच्छा जी, आगे चलते हैं. सो दैट्स ऑन फ्लक्स. ठीक है, इसमें एक yeah, I think that's good enough. और obviously इसके जो units होंगे वो, जी बोलो question. सर ये statement repeat कर सकते हैं कि वेक्टर फील्ड्स जो परपेंडिकुलर होंगे एरिया के, so basically okay, let me write that so you can say this thing that component of the vector f along the अगर मैं इसको ds डायरेक्शन लिखूं, अच्छा ऐसे नहीं लिखते, along the normal to ds will contribute to the flux. ठीक हो गया? That's what I mean here. ठीक है? So अगर मैं इसकी एक इसकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन चलो ले लेते हैं एज एन एग्जांपल, वही जो मैंने आपको बहुत दफा पहले भी दी है, आपका सेल फोन का एंटेना एक रेक्टेंगुलर पीस है, पैच एंटेना है. ठीक है? सो ये जो वेक्टर्स हैं जो यू फोन का सिग्नल है, या आपका लेट्स से मेरा यू फोन का नेटवर्क है, सो ये जो वेक्टर्स हैं इन सारों का जो along the normal इस पैच पे होगा, उसका contribution would dictate how much signal I'm receiving. ठीक हो गया? So that's something we can think in terms of engineering. अच्छा, अब आगे चलते हैं. We need to use the definition of a flux to define, और अभी चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी जब मैं अब ये डाइवर्जेंस डिस्कस करूंगा. So let's ये फ्लक्स, ये जो मैंने फ्लक्स साइड डॉट ds लिखा है, ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस में कहां पर है? ये है d डॉट ds या b डॉट ds. इस इक्वेशन का क्या मतलब है मैथमेटिकली? सिर्फ मैथमेटिकली कोई बताएगा, अटेम्प्ट करेगा इस इक्वेशन का मतलब मैथमेटिकली? भूल जाओगे ये गॉसेस लॉ है. कोई बताएगा व्हाट इज द मैथमेटिकल इंग्लिश फॉर दिस इक्वेशन? कोई अटेम्प्ट करेगा? कोई नहीं करेगा. कम ऑन गाइस, डोंट बी शाय. कौन करेगा? मैं फिर नाम रैंडमली लूं? ओके, इसका यही है कि टोटल फ्लक्स 0 है. नहीं, ये इक्वेशन, दिस वन d डॉट ds इज इक्वल टू q. कोई बोलेगा इसका? इसके ऊपर 0 तो नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी. फ्लक्स q है. और अगर मैं इस इक्वेशन की इंग्लिश, ये आप इक्वेशन पढ़ोगे ना, इंटीग्रल d डॉट ds इज इक्वल टू q, इंग्लिश में इस इक्वेशन को अगर कैसे पढ़ेंगे हम प्लेन इंग्लिश में? The surface integral of d and ds is q. The surface, no, the surface of d and ds is q. No, sir, the projection of the vector d along the normal of ds in a closed surface is q. Yeah, the total contribution of the normal component of d along the ds is q. ठीक है? और ये बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट है. यानी ये आपका q है बीच में, तो ये जितना भी इससे निकलेगा बाहर फ्लक्स, वो जितना भी बाहर निकलेगा नेट फ्लक्स, दैट इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड, अगर हम गॉसेस लॉ की बात करें. ठीक हो गया? और ऑब्वियसली जब हम ये डिफरेंशियल फॉर्म में बात करते हैं
ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्विवेलेंट है. This is the divergence of D is equal to this some rho V. So let's look over the divergence of D. What do we mean by divergence of D? सर ये रिपीट करते हैं. So what I said, iski plain English. So what I said that the total contribution of the normal component of D on the surface S would be Q, right? या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, the projection of D on a ds would be a Q. लेकिन ये ज़्यादा खूबसूरत इंग्लिश है. The total normal component, total contribution of the normal component of the D on a surface is the Q. ठीक है? ठीक है? So let's now let's discuss divergence. So what do we mean by divergence? पहले इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं और फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगा, आपको एनिमेशंस दिखाऊंगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स कंफ्यूजिंग होते हैं स्टूडेंट्स के लिए. सो डाइवर्जेंस की जो डेफिनेशन है, दैट इज नेट आउटवर्ड फ्लक्स of a vector field from a closed surface so okay, चलो थोड़ा सी ये मैं मोटिवेशन लिख रहा हूँ. Net outward flux of a vector field from a closed surface measures magnitude of sources or sinks enclosed by the surface. Okay, so and basically the formally the divergence of F is given as del dot F is equal to limit the volume approaches to 0 F dot ds over del V. अच्छा, इसका क्या मतलब है? That divergence, अभी घबराना नहीं है, मैं अभी आपको इसका प्रॉपर इंटरप्रेट करता हूं आपके साथ. Divergence F is the net outward flux of the vector field F per unit volume as the volume shrinks to 0 and divergence is a del dot F क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है is scalar. अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा सा मतलब ढूंढ लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं. क्या है कि किसी भी अगर एक क्लोज सरफेस है उसमें से इफ देयर इज अ नेट आउटवर्ड फ्लक्स आइदर पॉजिटिव जो कि ऐसा होता है या नेगेटिव के अंदर जा रहा है, इंडिकेट करेगा in this case there would be a source inside the surface or in this case there would be a sink in this case. सोर्स का यही मतलब है, अगर हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में बात करें, कि पॉजिटिव चार्ज है, और सिंक का यही मतलब है कि नेगेटिव चार्ज है as a more electromagnetic form. So हम ये कैसे, डाइवर्जेंस की डेफिनेशन क्या है कि आप किसी भी सरफेस को पे नेट फ्लक्स फाइंड करें
पर उसको वॉल्यूम से डिवाइड करें और फिर वॉल्यूम को क्या करते जाएं, छोटा छोटा करते जाएं, लिमिट टू 0, तो वो वॉल्यूम कहां पर कन्वर्ज हो जाएगा? यू कैन इमेजिन कि दैट वॉल्यूम वुड बी कन्वर्ज टू दैट सोर्स और सिंक. सो बेसिकली तो डाइवर्जेंस आप किसी भी चीज की निकालेंगे तो वो आपको बताएगा कि आया सोर्स पड़ा है कि सिंक पड़ा है यहां पर. ठीक है. और अगर डाइवर्जेंस एफ एग्जिस्ट करेगी किसी भी वेक्टर फील्ड की, सो दिस वुड मीन कि देयर इज अ नेट आउटवर्ड फ्लक्स एग्जिस्ट्स देयर. ठीक है. अच्छा, अब ये वाली जो, अभी कोई बात नहीं, अभी घबराना नहीं है, बस मेरी बातों को फॉलो करो. अभी I'm gonna do some examples and I will show you some animation. I'm sure this would be fully clear. और मैं engineering example भी दूंगा आपको. So this definition of the flux is sometimes, not sometimes, a lot of times very difficult to invoke. So आप लोगों ने ये देखा हुआ है flux की in your Cal 2 vector calculus course, हम इसके proof में नहीं जाएंगे. The divergence is also equal to partial fx over x plus partial fy over y plus partial fz over z. So ये हम often definition इस्तेमाल करते हैं as compared to this partial derivative वाली जो definition है, we use that definition. ठीक है. अच्छा, इसके अंदर what does this mean exactly? अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये एक वेक्टर फील्ड है, ठीक है, f x y z, एक वेक्टर फील्ड ड्रॉ करते हैं. वेक्टर फील्ड, वेक्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसका डायरेक्शन होती है. दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड एंड दिस इज इट्स डायरेक्शन. ठीक है, मेरे साथ रहिएगा एंड आई एम श्योर थिंग्स वुड बी क्लियर. सो अगर मैं आपसे कहूं कि इस वेक्टर को प्लॉट करते हैं, अगर मैं इस वेक्टर को प्लॉट करूं तो कैसा होगा वेक्टर ये? सो दिस वुड बी, लेट्स से ये मेरा z है और ये मेरा y है. ठीक है, तो ये वेक्टर कैसा होगा? जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड z में है, डायरेक्शन y है. इन अदर वर्ड्स ये वेक्टर ये ऊपर जाते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, राइट? यहां पर ये ऐसा ही है, इधर भी ऐसा ही है, इधर भी ऐसा ही है, इधर भी ऐसा ही है. अच्छा, अब अगर मैं इस वेक्टर को देखूं, इस वेक्टर का मतलब क्या है कि इन पॉइंट्स के ऊपर मेरा मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है. ठीक हो गया. अब अगर मैं इस वेक्टर के फील्ड के अंदर लेट्स से एक यहां पर एरिया ड्रॉ करता हूं, मुझे बताओ कि आई विल टेक ए पॉज फॉर फ्यू सेकंड्स हियर. मुझे बताओ जितनी लाइंस इसके अंदर घुस रही हैं उतनी लाइंस निकल रही हैं आगे से, जितनी पीछे से घुस रही हैं उतनी आगे से निकल रही हैं, कि चेंज हो रही है नंबर ऑफ लाइंस? कैन यू थिंक हियर? आ रही है उतनी निकल रही है. इसका मतलब ये है कि जो नेट फ्लक्स है थ्रू दिस एरिया इज व्हाट? 0. बिकॉज whatever the number of lines which are coming, the same number of lines are going out. इसका मतलब ये है कि within this area there is no source or sink present. source का मतलब ये है कि हम बढ़ा नहीं रहे लाइंस को, और sink का मतलब ये है कि हम घटा नहीं रहे लाइंस को, कुछ भी नहीं हो रहा. और आप ये देख सकते हो when I invoke this definition here, जब मैं ये डेरिवेटिव लेता हूं तो पार्शियल, ये क्योंकि y कंपोनेंट है, partial fy over y is 0. There is no divergence. Divergence इंग्लिश का वर्ड है कि कितनी चीजें डाइवर्ज कर रही हैं, कितनी फूट रही हैं चीजें, इनवर्ड या आउटवर्ड. देयर इज नथिंग फूटा है. ओके. अच्छा, अब चेंज करते हैं एग्जांपल. इफ आई से इसमें नेट फ्लक्स 0 है या इसमें डाइवर्जेंस 0 है? इसमें नेट फ्लक्स भी 0 है इस एरिया से. देखो डेफिनेशन क्या है फ्लक्स की, डाइवर्जेंस की. नेट
net outward flux of the vector field per unit volume is the volume shrinks to 0. अगर मैं एक closed surface बना दूं, let's say एक फुटबॉल पड़ा हुआ मेरा as an example, 3D में सोचो, और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज कहीं यहां पड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, इससे निकलेंगी फोर्स ऐसे, और जितनी आ रही है उतनी अंदर बाहर जा रही है. There is no net for this point, there is no net flux. ठीक है, because there is no source or there is no sink inside. ये की बात है डाइवर्जेंस की. There is no source and there is no sink. So एक मैं एग्जांपल और करता हूं और फिर मैं आपको कुछ एनिमेशंस दिखाता हूं, फिर मैं आपको इंजीनियरिंग एग्जांपल भी देता हूं. आई एम श्योर थिंग्स विल बिकम क्लैरिफाइड. लेट्स से ये है YAY. अच्छा, YAY अगर मैं लेता हूं, लेट्स से ये उसी तरह मैंने Z था और ये Y ये है, इसका कैसा वेक्टर होगा, यहां पर ऐसा होगा, एंड एज आई एम फ्लोइंग इन द Y इट इज इंक्रीजिंग. ऐसा ही है, राइट? ऊपर ऐसे ही रहेगा क्योंकि सेम Y के लिए ये सेम है. वेक्टर फील्ड क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है. ठीक हो गया? ठीक कह रहा हूं ना? बताओ. अच्छा, अब इसके ऊपर मैं एरिया बनाऊंगा, तो मुझे बताओ जितनी लाइंस आ रही थी उतनी ही बाहर जा रही हैं कि स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई है? यस, कम ऑन. ये YAY को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं. ये सर ज्यादा हो गई है, ज्यादा हो गई हैं क्योंकि एज Y इज इंक्रीजिंग, मेरा ये मैग्नीट्यूड फील्ड का बढ़ रहा है. इसका मतलब है ये लाइंस अगर बड़ी हो रही हैं, स्ट्रेंथ ज्यादा हो रही है, इसके अंदर सोर्सेस पड़े हुए हैं, यहां पर सोर्सेस पड़े हुए हैं कोई ना कोई. ठीक है, एंड दैट्स व्हाट दिस ये जो डाइवर्जेंस आप किसी जगह पर कैलकुलेट करोगे तो वो आपको बताएगा, अगर वहां पर कोई पॉजिटिव नंबर आ जाएगा तो आपको लगेगा वहां पर सोर्स पड़ा हुआ है, और नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो आपको लगेगा सिंक पड़ा हुआ है. एंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव आएगी तो आपको कहोगे वहां पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, और अगर नेगेटिव आएगी तो आप कहोगे वहां पे नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है. सो मैं इसकी एक एनिमेशन दिखाता हूं आपको, और फिर मैं मजीद कुछ इसके ऊपर मजीद बात करूंगा, एंड इंशाल्लाह ताला थिंग्स वुड बी फुली क्लियर्ड हियर फॉर यू गाइस. सो ये एनिमेशन देखें, ये एक वेक्टर फील्ड है, ये एरिया मैंने बनाया है. यहां पर अगर मैं देखूं, यू कैन सी यहां पर डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा है. ठीक है, इस जगह पर ये जहां मेरा कर्सर है, कोई नेट फ्लक्स नहीं हो रहा, 0 है वेक्टर फील्ड, सो यू डोंट हैव द डाइवर्जेंस स्टेज 0. यहां पर मजीद ज्यादा है. अब गौर से देखो, डाइवर्जेंस की इंट्यूशन ये है कि जितनी लाइंस अंदर घुस रही हैं और उतनी बाहर निकल रही हैं, उससे ज्यादा निकल रही हैं, तो डाइवर्जेंस पॉजिटिव हो रही है. ठीक है, इस केस के अंदर आप देख सकते हो कि डाइवर्जेंस थ्रू आउट द एरिया, ये जितना भी वेक्टर फील्ड है, मेरी डाइवर्जेंस यूनिफॉर्म सेम नहीं है. ये जो पीछे मैंने आपको एग्जांपल दी है, दिस वन हियर, अगर मैं वो ये डाइवर्जेंस की इक्वेशन लगाऊं, दिस वन पार्शियल fx और पार्शियल x, पार्शियल fy और पार्शियल y, तो इसकी डाइवर्जेंस क्या है, 1 है, कांस्टेंट है, हर जगह पर सेम है डाइवर्जेंस. सो डाइवर्जेंस इज ऑलवेज डिफाइंड एट ए पॉइंट. Divergence is always defined at a point. So जो मैसेज है यहां पर, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप जो वेक्टर फील्ड है, इफ यू कैलकुलेट इट्स डाइवर्जेंस, वो आपको बताएगा वहां पर सोर्स है कि सिंक है. दैट इज द पॉइंट, दैट इज द की पॉइंट हियर. यस जी बोलो. In this example, is the divergence positive? Because as we move out, the length is increasing of the vector. ये पॉजिटिव, ये 1 है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव 1. कहीं पर भी एरिया लो, कहीं पर भी आप ये सरफेस बनाओ, ये डाइवर्जेंस सेम है. लेट्स से लेकिन अगर y स्क्वायर हो, लेट्स से मेरा वेक्टर फील्ड जो है
y स्क्वायर है, तब इसका डाइवर्जेंस 2y हो जाएगा, ठीक है। और 2y का मतलब ये है कि along the y this divergence is changing, it's not a constant, it's defined at a point. For example, either divergence कुछ और होगी, यहां पर कुछ और होगी, यहां पर कुछ और होगी. As you are improving y, your divergence increases. In other words, as you are moving along a y, you are adding sources, there. Sir, जी. so suppose if you move along y and the magnitude of the vector decreases, then there would be a sink present. And there would be a sink. आप समझोगे ईटा पो रहा है, आपके सिंक है वहां पर, ठीक है। अच्छा, अब एक मैं आपसे एक इंजीनियरिंग का सवाल पूछता हूं, जरा सोच के मुझे जवाब देना। लेट्स से यू नो आपका जो सेलुलर फोन है वो यू फोन का है, या जो भी है, आप अपने कमरे के अंदर ये जो सेलुलर सिग्नल है, सेलुलर सिग्नल्स जो हैं ये वेक्टर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, इसका डाइवर्जेंस लोगे तो क्या डाइवर्जेंस की क्या वैल्यू आएगी, जरा सोच के मुझे बताओ। लेट्स सी हु कैन आंसर दैट क्वेश्चन। डू यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? दैट इन माय रूम, यहां जब मैं बैठा हुआ हूं, राइट, मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूं यहां पर, और मैं यहां पर डाइवर्जेंस, मेरे पास लेट्स से डाइवर्जेंस मीटर है, उसको मैंने पकड़ा है और उसको मैंने यूं चलाना शुरू किया और मैंने डाइवर्जेंस मेजर करना शुरू की है। ये जितने भी सेलुलर फोन सिग्नल्स हैं, will I be able to detect a positive divergence, negative divergence, or what? कौन बताएगा? तो बताएगा मुझे? Can you repeat the question? So question ये है कि I'm sitting in my room, right, and there are all cellular phone signals floating around me, you know, यहाँ पर cellular, ये मेरा सेल फोन है, इस सिग्नल कैच कर रहा है, जारी बात है, यहाँ पे यूफोन के भी हैं, मोबिलिंग के भी हैं, टेलेनॉर के भी हैं, यू नो, और सिग्नल्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट्स अ वेक्टर। तो जो भी हमारा सेल फोन सिग्नल कैच कर रहा है वो वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से जनरेट होता है, देयर इज अ चार्ज, और वो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है ना, फ्रॉम द बेसिक फील्ड डेफिनेशंस। तो मेरा सवाल ये है कि इस रूम में अगर मैं डाइवर्जेंस मेजर करूं इन सेलुलर सिग्नल्स की, तो क्या निकलेगी डाइवर्जेंस? जीरो नहीं चाहिए क्योंकि सोर्स भी नहीं है और सिंक भी नहीं है कोई। जबरदस्त, जबरदस्त। डाइवर्जेंस की डेफिनेशन ये है कि डाइवर्जेंस जीरो होगी अगर कोई सोर्स और सिंक है ही नहीं, इस फ्री स्पेस में चार्ज नहीं है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब एंटेने पे हिले थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था। आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट लेटर ऑन, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए चार्ज होना जरूरी है। ये फ्री स्पेस डाइलेक्ट्रिक है, देयर इज नो फ्री चार्ज here, so the divergence would be zero here। और अगर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूं कि मैं अपने सेल फोन के एंटेने के ऊपर जाके डाइवर्जेंस लेता हूं तो क्या कोई निकलेगी डाइवर्जेंस? लेट्स से सेल फोन एंटेना के ऊपर, will it be a non-zero divergence or what? नेगेटिव होगी। वजह क्योंकि सारी सिंक है ना एक किस्म का, क्योंकि अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। क्यों हम अपने जिंदा होने का सबूत नहीं भेजते सेल फोन से कि हम जिंदा भी हैं? हाँ सर, ये भी है कि नहीं? सो द पॉइंट यहाँ पर ये है, एंटेने के ऊपर नॉन जीरो डाइवर्जेंस होगी। Sir, doesn't a phone also work as a sink or a source? Yes, it works both. How can it be zero? It's not zero. Our mobile phone is also a cellular phone, a source or a sink. हाँ, फोन के एंटेने के ऊपर डाइवर्जेंस जीरो नहीं होगी, लेकिन स्पेस में होगी जीरो, जहां पर फोन नहीं है, जहां पे सरफेस कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर चार्ज कोई नहीं है। फ्री स्पेस इज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन जो आपने पढ़ी है उसके ऊपर मैं डाइवर्जेंस निकालूंगा तो कोई ना कोई निकलेगी, क्योंकि वहां पे चार्जेस होंगे, तो कंडक्टर है इन जनरल, ठीक है। अच्छा, अब मैं वापस आता हूं इधर, ये जो पहली दो इक्वेशंस है मेरी, इस इक्वेशन का क्या मतलब है? हम फिजिक्स में नहीं जाने लगे, बस मैथमेटिकली मतलब क्या है इस इक्वेशन का, कौन बताएगा?
बताओ बताओ ना यार, सो गए हो? कोई नहीं बताएगा? Nobody wants to attempt? Okay, I'll attempt it. So ये कह रहा है कि जो d वेक्टर है उसका जब मैं डाइवर्जेंस लूंगा किसी भी पॉइंट के ऊपर तो वो ये रो v के बराबर निकलेगा. That's it. और रो v is a source, क्योंकि लेट्स से इन जनरल ये फिलहाल क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, हम डाइवर्जेंस ऑफ d लेंगे तो सोर्स निकल आएगा. d is a वेक्टर, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, मुझे नहीं फिजिक्स पता क्या है, लेकिन d इज अ वेक्टर, इसका डाइवर्जेंस लूंगा तो सोर्स निकलेगा. तो इसको देखो, ये जो आपका गॉसेस लॉ है जो आपने यूजुअली पढ़ा हुआ, ये यही नहीं बता रखा है कि एक एरिया के अंदर, ये क्लोज्ड एरिया के अंदर ये जो नेट फ्लक्स है वो किसके बराबर है? चार्ज के बराबर है. तो ये भी तो यही बता रहा है कि जो डाइवर्जेंस है अगर मैं किसी पॉइंट पे लेता हूं जाके तो मुझे ये बता देगा चार्ज कितना है वहां पर. कोई फर्क नहीं है दोनों में. ये इंटीग्रल फॉर्म है और ये डिफरेंशियल फॉर्म है. डिफरेंशियल फॉर्म को हम इस कोर्स के अंदर ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे. तो जो फिजिकल मीनिंग है दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो की बात है यहाँ पर जो आपने नहीं मैस्ड अप करनी वो ये है कि डाइवर्जेंस, whenever you take a divergence you will figure out a source या सिंक. जैसे आप ये बताओ, वो जो आपका जो बाथरूम में बेसन लगा हुआ है उसमें सिंक क्यों कहते हैं उसको? उसमें होल है, वो सिंक है. सारा पानी जो नलके का निकलता है वो सारा उसमें चला जाता है, राइट? जितना भी सोर्स है पानी आ रहा है वो सिंक के अंदर जा रहा है. दैट्स अ डाइवर्जेंस. उस सिंक के होल के ऊपर अगर मैं एरिया बनाऊंगा तो आई विल गेट अ नेगेटिव डाइवर्जेंस, लेकिन बाकी जगहों पर सिंक पे जाऊंगा तो क्या होगा? डाइवर्जेंस क्या होगी? बताएगा कोई? चलो एक ऐसी बन गई है ना, लेट्स सी, अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं. जीरो या जीरो होगी, क्योंकि लेट्स से ये मेरा सिंक मैंने बनाया है. दो सिंक बनाते हैं. ये सिंक मैंने बनाया है, ठीक है, और ये नलका खोला है ऊपर, ठक 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 पानी निकल रहा है और ये पानी यहाँ से जा रहा है. तो बाकी जगहों पर पानी, अगर लेट्स से नलका बहुत तेज है तो यहाँ पर तो डाइवर्जेंस इन जनरल जीरो होगी, क्योंकि जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है. यहाँ पर डाइवर्जेंस नेगेटिव होगी और यहाँ पर डाइवर्जेंस क्या होगी? इस जगह पर पॉजिटिव. जबरदस्त, बिल्कुल. सो डाइवर्जेंस को जब समझना है आपने इंट्यूटिवली तो आपने वेक्टर फील्ड की डाइवर्जेंस वो मैथ से तो निकल आएगी, वो तो कुक बुक रहता है भाई यार, वो जल्दी जल्दी उसका इंटीग्रल लो और अल्लाह खैर ये डेरिवेटिव लो और निकल आएगी. लेकिन इंट्यूशन में आपने सोचना है कि अच्छा यहाँ पर मैं एक एरिया रखूंगा तो मेरी नेट आउटवर्ड फ्लक्स होगा कि नहीं होगा. दैट इज द की थिंग व्हिच यू इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट्स नीड टू अंडरस्टैंड वेल. ठीक हो गया? अच्छा, इसमें एक चीज है मैंने उसमें मैं नहीं बता सका था. ये मैंने जो डाइवर्जेंस के और उसके जो रिलेशनशिप्स लिखे हैं ग्रेडियंट के, वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में लिखे थे. इन सिलेंड्रिकल एंड सफारिकल उनकी थोड़ी सी फॉर्म डिफरेंट है. दिस इज द ग्रेडियंट, दिस इज प्रेजेंट इन योर बुक. और डाइवर्जेंस की सिलेंड्रिकल फॉर्म और सफारिकल फॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट है. उसकी वजह यह है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफरेंट है. ठीक है, सो आपने मैसअप नहीं करना. आपने अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में डाइवर्जेंस निकालनी है तो आपने ये रिलेशनशिप्स इस्तेमाल करने हैं. और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने ये नहीं करना कि आप जैसे यहाँ पर हुआ है आर एफ आर मल्टीप्लाई हुए हैं, आपने ये नहीं करना, इनको काट नहीं देना आपने. व्हाट यू नीड टू डू, you need to multiply your radial component with r, take the derivative with respect to r and then divide by r. That's the way of doing these mathematical analysis. Same here, क्या आपने cylindrical coordinate system के अंदर sin थीटा के साथ थीटे को मल्टीप्लाई करके उसका डेरिवेटिव थीटे से लेना है और फिर r sin थीटा से डिवाइड करना है. तो ये इनकी एक खास मैथमेटिकली हम उस प्रूफ में नहीं जाते ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन यू नीड टू हैव दिस थिंग इन योर माइंड. ठीक हो गया? अच्छा, एक इसमें एक आखिरी बात कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम हम कर्ल को डिस्कस करेंगे. वो ये है कि ये जो मैक्सवेल इक्वेशन है पहली वाली, ये वाली, इसको हम, क्योंकि ये बोथ इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट, बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट, ये दोनों इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं. इसमें आपस में हमने कन्वर्जन कैसे करना है ये फर्स्ट इक्वेशन का, वो फॉर दैट वी विल यूज a very nice theorem, और उसका प्रूफ हम फॉर्मल मैथमेटिकल नहीं करेंगे,
हाँ, लेकिन मैं आपको उसकी इंट्यूशन जरूर बताऊंगा। डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है? वो ये कहता है दैट f dot ds over a surface is equal to this। कौन इसकी अंग्रेजी बताएगा इस इक्वेशन की? अब आपके पास सारे टूल्स हैं इसकी अंग्रेजी बताने में, इसको इंग्लिश में बोलने के लिए। Who will attempt that? हमने देखो, हमने ये भी पढ़ लिया है, डाइवर्जेंस है, ये एक वॉल्यूम के ऊपर डाइवर्जेंस हो रही है, हमने ये भी पढ़ लिया है, ये क्लोज सरफेस। इसकी इंग्लिश क्या है इस थ्योरम की? दिस इज f dot ds is equal to del integral of f dot d, closed integral of f dot ds is equal to divergence of f throughout the volume v। कौन इसकी मुझे प्लेन इंग्लिश बताएगा? बताएगा कोई कि कोई नहीं बताएगा? और ये नजर आता है ये क्यों ठीक है किसी को? ये जितनी हमने डिस्कशन की है, हम फॉर्मल मैथ का प्रूफ तो हम कर सकते हैं, लेकिन इंट्यूटिवली आपको नजर आ रहा है ये क्यों चीज ठीक है? किसको नजर आ रहा है? किसी को भी नहीं नजर आ रहा यार। कुछ बोलो तो सही यार, कि मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूं। जी हसन रजा ने हैंड रेज किया, बताओ जी हसन। हसन जी सर, इंट्यूशन ये है बेसिकली कि जो फ्लक्स है वो हमारे पास ग्रेडियंट और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है। ग्रेडियंट और वॉल्यूम, ग्रेडियंट कहां पर आ गया? देयर इज नो ग्रेडियंट, देयर इज नो डाइवर्जेंस। आई एम सॉरी, ये बात हमने पहले भी की थी, क्योंकि डाइवर्जेंस और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो होगा वो फ्लक्स होगा। और अगर हम यूं सोचें तो मतलब है कि किसी भी एक वॉल्यूम से जितना भी डाइवर्जेंस होगी वो डाइवर्जेंस फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डाइवर्जेंस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी इंट्यूशन वो तो आप सही कह रहे हो बात। तो चलो लेट मी, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया, लेट मी स्टेप इन हियर। ये देखो डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या बताता है? नेट सोर्स या नेट सिंक, करेक्ट? इस डाइवर्जेंस का इंटीग्रल थ्रू आउट द वॉल्यूम लूंगा तो मुझे क्या बताएगा? पूरे वॉल्यूम के अंदर मुझे सोर्स या सिंक बता देगा जितने भी हैं। लेट्स से नेट सोर्स है तो पॉजिटिव कोई सोर्स, नंबर ऑफ सोर्सेस बता देगा मुझे। और ये क्या है? नेट फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस। यानी कि अगर आप ये समझो, सफेयर को अपने दिमाग में इमेजिन करो, बॉल को अपने दिमाग में इमेजिन करो 3D में, और उसके अंदर नेट चार्ज, लेट्स से एक नेट चार्ज एक पॉजिटिव बनता है, तो ये डाइवर्जेंस थ्रू आउट द वॉल्यूम बताता है एक चार्ज निकलेगा। और ये क्या बताता है? ये कहता है जो फ्लक्स है वो किसके बराबर है? वो भी इस चार्ज के बराबर ही है, राइट? वेरी इंट्यूटिव, वेरी, बहुत खूबसूरत रिजल्ट है। तो अगर मैं इसकी क्विकली ये बात लिख दूं इस डाइवर्जेंस थ्योरम की, दैट इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ a vector field over a closed surface yields the same result as the integral of the divergence of the vector field throughout the volume enclosed by the surface। ठीक है, ये उसकी प्लेन इंग्लिश है और बड़ा ही इंट्यूटिव है। जब आप इस डाइवर्जेंस थ्योरम को आप जब इसके ऊपर लगाओगे, और मैं अगली क्लास में स्टार्ट ही यही करूंगा, ये जो आपका गॉसेस लॉ है, D डॉट ds इज इक्वल टू Q, जब आप ये इसके ऊपर लगाओगे, सो यू विल गेट दैट डाइवर्जेंस रिलेशनशिप। आई विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन ये बहुत इंट्यूटिव है। नेट नंबर ऑफ सोर्सेस थ्रू आउट द वॉल्यूम इज सेम एज द नेट फ्लक्स।
ठीक है? Could you please scroll down? Oh, okay. ठीक है? So I think I'm out of time. So I'm going to stop recording and I will still be with you for answering any of your questions. So जो recording देख रहे हैं, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला next I will see you on Wednesday जब हम इस vector calculus को wrap up करेंगे.